first 2 years we only had hardly 20 or 30 clients. कोई आता ही नहीं था. हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ब्रेन वाले न्यूरॉन्स हैं ना वो गट में है. I'm going to introduce you to Sadia, who is the brainchild behind Diet by Design. I used to work with FPR. I was an additional commissioner Tax. there. जी. Ooh. So Ooh. it's like just the opposite of what I do now. किसी भी mental health issue को deal करने के लिए the best thing is to eat healthy and to exercise. People kept telling me कि इतने मज़े का खाना है तो कहीं और भी मिलना चाहिए. What is gluten? ग्लूटेन एक ऐसी चीज़ है जो व्हीट के अंदर हो. बहुत ज़्यादा ग्लूटेन खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. तुम्हारा छोटा सा एक डायलॉग सुना दिया. This is so good. सडन हार्ट अटैक वो अंदर की फैट होती है जो कि उनके सब ऑर्गन्स के ऊपर एक्सेसिव होती है. Assalamu alaikum everyone, I'm Aisha Umar and you're watching Speakeasy on 365 News. I am in beautiful Lahore at a beautiful home full of plants and this gorgeous pool. तो जिसके घर में आई हूँ वो नेचर को बहुत अप्रिशिएट करती हैं. इनफैक्ट वो कोशिश करती हैं कि वो जो क्रिएट करें वो नेचर के करीब हो. I got to know her a few years ago जब मैं एक फ़िल्म शूट कर रही थी. अच्छा, जब मैं वो फ़िल्म शूट कर रही थी तो मैंने कहा कि मैं खाने क्या खाऊंगी. लाहौर में मेरी 2 महीने की शूट थी. सो देयर वाज एन AD ऑन सेट और उन्होंने कहा कि एक मील प्लानिंग सर्विस है. मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ उनकी ओनर से और आप अपने मील्स वहाँ से ले सकती हैं. मैंने कहा अच्छा बताओ. He sent me the number. At that time, the lady that you're going to meet right now, she wasn't in Pakistan, but her business had started running here. She had formed her company. उसके बाद मेरी उनसे बात हुई. मैंने कहा अच्छा मैं आयशा उमर हूँ और मैं एक फ़िल्म शूट कर रही हूँ और मैं अपनी हेल्थ और अपने खाने के बारे में थोड़ी सी पर्टिकुलर हूँ. तो मैं रोज़ लाइक स्पाइसी ऑयली बाहर के खाने नहीं खा सकती. सो आई वॉन्ट टू ऑर्डर मील प्लान्स एवरी डे. सो शी सेड ओके, कितने दिनों के लिए? मैंने कहा इतने दिनों के लिए. अच्छा, 2 दिन उनके मील प्लान्स खाए, 3 दिन खाए एंड उसके बाद I just fell in love with her meals. Every time I come to Lahore, which is a lot, I eat meals designed by her and her company. So today, I'm going to introduce you to Sadia, who is the brainchild behind Diet by Design. And she's right here. Hello. How are you? Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Good, how are you? So good to see you. Yes. अंदर चलें. चलो. Sadia, I think I'm meeting you after my surgery for the first time. Yes. है ना? First of all, I'd like to thank you for opening your home to us, to my team. I thought कि हम आपके ऑफिस आ रहे हैं जहाँ पे मेरा आना जाना रेगुलरली लगा रहता है. But then I realized, ooh, you're bringing us to your house. Yeah, I thought it should be something different this time, especially because I'm meeting you after so long and your surgery and everything happened and I really wanted to, give you a warm welcome. I love your house. It's so beautiful, इतनी natural light है और colors are so soothing and calming. Is that you? Yes. So my husband designed it and I did the interiors. Wow. Achha, Sadia, you sent me some fantastic supplements. For those of you who don't know, Diet by Design meal plans के साथ they started making their own supplements as well. We'll go into that. But I'd really like to thank you क्योंकि मुझे collagen supplement की और मुझे ashwagandha जो it's a calming herb बहुत ज़रूरत थी. And I on and off मैंने 2-3 महीने उनको use किया. It really helped me. I still have a bit of your supplements lying with me. मैं थोड़ी break ले रही थी. I think it's good to take a break between supplements and when you're supplementing yourself. So thank you so much for sending those supplements. Most welcome. थोड़ा सा बताएं हमारी audience को कि वो क्या था, उनके ingredients क्या थे उन supplements के. So Aisha, when you told me that you had gone through all that surgery और वो सब, तो I got really worried and I thought कि कराची में मैं कैसे help कर सकती हूँ because यहाँ पर तो meals and all we have them. But so we have these supplements. We started making them like 12 years ago when we started Diet by Design. Wow. और 12 years में now we have almost 10 supplements, all patent, trademark and everything, and they are our own formulas. तो कहाँ बनते हैं? So they are made in Hong Kong.
Yeah, so they are all imported. So we have the formula, we send it to them, and then they go through extensive trials, like 2 months trials and all, and they test it on different people. So whatever is in our supplements is like unique. So the combination of the herbs is तो unique. आप रिसर्च करके बताते हैं. Yes, exactly. So the ingredients they get from their own companies, and so our herbs are famous all over the world. So हम उनको import करते हैं हांगकांग से, but फिर हम export करते हैं. So 43 countries में हमारे clients हैं जो कि ये herbs इस्तेमाल करते हैं. So yeah, so we started when you 43 countries में. yeah. So we have almost like 50,000 plus clients हैं दुनिया में जो इसको use कर रहे हैं. US डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? Okay, so वो हमारे clients ही हमें जब contact करते हैं, we do the assessment online and we decide what's good for them, and then we DHL it to them. So नहीं, वो courier लेकिन होता है. सप्लीमेंट्स किसी स्टोर में अवेलेबल नहीं. They're not, no, because there's a reason for it. कि हर सप्लीमेंट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखे लोगों को लगता है कि हर्ब्स हैं तो कोई भी ले सकता है, किसी वक्त भी ले सकता है. हर्ब्स आर मेडिसिनल, दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. तो वो ऐसा नहीं है, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं ले सकते, तो हर्ब्स के लिए भी आपको अपने डाइटिशियन, हर्बलिस्ट, किसी से आपको कंसल्ट करना होता है. सो वी डोंट कीप दैम एट स्टोर्स और एनीवेयर एल्स. तो वो फिर जब हमें कोई बताता है, वी लुक एट देयर एग्जैक्ट इंडिविजुअल हिस्ट्री, उनके क्या मेडिकल इश्यूज़ हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो हमारा अश्वगंधा ले सकता है, लेकिन वो हमारा थर्मोजन दूसरा वाला नहीं ले सकता, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे वो इट कैन disrupt the entire system. So herbs भी medicines ही होते हैं. तो इसलिए stores में कहीं नहीं. So people contact us, we go through their entire history, medical history and everything, and then we recommend it to them, and then we export it as well. जैसे अश्वगंधा है, बहुत पॉपुलर हो गया in the last 10 years. It's an Ayurvedic herb, I believe. और वो भी हर कोई नहीं ले सकता. Exactly. जिसको लो ब्लड प्रेशर है, That's वो ना ले. You're right, because I know you know so much about herbs and health, and I love you for that, and spreading all the awareness wherever you go. I know you do that. इसलिए बिकॉज सादिया लाइक यू नो मेरी अम्मी को एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मैलफंक्शन था, वो मैनेज किया मेरे भाई ने, हमने बहुत रिसर्च की एज अ फैमिली. एंड तो मैं बहुत पॉडकास्ट देखती हूँ इन माई फ्री टाइम. अच्छा, there was a time when I would watch a lot of meaningless shows. But then I was like, मैं क्या गेन कर रही हूँ इन चीज़ों से, मुझे क्या नॉलेज हो रही है, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन हो रही है. नॉट दैट मैं ड्रामे नहीं देखती, मैं ड्रामाज भी बिंज वॉच करती हूँ, बट आई लाइक टू वॉच इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट एंड इतनी नॉलेज आपको गेन होती है. That's right. एंड मेरी कोशिश है इस शो में भी कि जब लोग ये मेरी एपिसोड 1 ख़त्म करें तो कुछ ना कुछ नया सीखें मेरे गेस्ट से या शायद मुझसे, और फिर अपनी फीडबैक दें और हम आप लोगों से भी सीखेंगे. सो सादिया, टेल मी अबाउट डाइट बाय डिज़ाइन. हाउ डिड इट स्टार्ट? कैसे आपको ख्याल आया अपनी ज़िंदगी में कि मैंने ये शुरू करना है? अच्छा आयशा, ये बड़ा ही फ़नी क्वेश्चन है, बिकॉज इसका आंसर बहुत ही ऑड है. सो आई यूज्ड टू वर्क विद FPR. आई वाज एन एडिशनल कमिश्नर देयर. जी. सो इट्स लाइक जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई डू नाउ. ठीक है, पहले ये था कि आई वाज लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. आई वाज वन ऑफ द ऑफिसर्स हु वाज आस्किंग इन हु वाज ट्राइंग टू गेट टैक्स आउट ऑफ द बिजनेसेस. और अब मैं खुद एक बिजनेस हूँ और FPR मेरे ऑफिसर साइड. जी हाँ. तो जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की, आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि सबसे पहले मुझे क्या चीज़ें पूरी होनी चाहिए, लाइक गेट योर NTN डन, गेट योर रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस एंड एवरीथिंग, बिकॉज उसके बगैर यू शुडंट एवर. बिकॉज कोई छोटी से छोटी कंपनी भी नहीं शुरू होनी चाहिए? नहीं. The day you think of starting a business, even if it's an individual sole proprietorship, or even if you're starting from home, yes, absolutely, you should register it. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे. आपको क्या complications फिर वो face करते हैं? आयशा, जब उनका थोड़ा सा बढ़ता है बिजनेस तो फिर ऑब्वियसली वो एक लाइमलाइट में आ जाते हैं, then they have to pay for the previous all the years. Damages. हाँ, और फिर वो टैक्स में ये भी होता है कि once you're in the bad books, they keep auditing you every year. So मैं अपने सब friends, I tell my friends whoever start business, या जिस तरह मैं लम्स में पढ़ाती भी हूँ, so I tell my budding entrepreneurs कि तुम लोग सबसे पहले टैक्सेस को देखना, अपने registrations, licenses, फूड है, जो भी चीज़ है, you should get everything in order and then start. सादिया, this is a revelation. यानी कि मुझे आपसे बिजनेस एडवाइस भी लेनी चाहिए? Not really. You're doing so well on your own. No. I love your brand. Oh my God, I'm really bad at accounts and numbers and finances, contrary to what people think. मैं एक मलंग हूँ बिल्कुल. मुझे अपनी स्प्रेडशीट सब भेज देना, I'll manage them. हाँ नहीं, मेरी अम्मी करती हैं. Yeah. बहुत, my mother.
हर चीज Very को- organized and very meticulous, yes. हाँ, एंड वेरी हर चीज़ की डिटेल में, तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट हर चीज़ रखती हैं एंड शी इज़ लाइक बस बिल्कुल एक ऑर्डर के साथ चलना है. आई थिंक जिंदगी भी इज़ अबाउट बैलेंस. आप whatever you put in to your body, it's going to show. You are what you Absolutely. eat. Absolutely. ठीक है. So Not just the food, Aisha. Actually, मैं मुझे लोग That's what I'm पूछते हैं ना. saying. Exactly. whatever you Yeah. consume, sorry, you are what you consume. जो आप देख रहे हैं, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जो energies आपके इर्द गिर्द हैं, all of that. I Right? keep looking at your stories and you post so many of those, and मैं हमेशा like और उसको वो करती हूँ, forward करती हूँ because not many people are talking about it. I mean, emotional balance आपको calm रहना, आपको stress free रहना कितना ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. It's the most important thing. Even if you're looking for weight loss, you're trying to conceive a baby, you're trying to keep yourself healthy, like your muscles healthy after 50. तो 50 के बाद लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा अब क्या होगा. So I'm like, it started from when you were in your 20s. अब एंड पे जाकर मत अब पूछो. समझ आ रही है मुझे भी आफ्टर माई सर्जरी. आई कीप ब्रिंगिंग इट अप, बट मैंने इतना सीखा है इस टाइम में, इन 5 महीनों में, कि आपकी जो मेंटल स्टेट होती है, जो फिजिकल इमोशनल स्टेट होती है, वो आपकी बॉडी को, आपकी हर चीज़ को किस तरह अफेक्ट कर रही होती है, एंड वाइस वर्सा. Exactly. Whatever you're eating is affecting emotional, mental, we must talk about that. Yes. How food is connected to your diet is connected to mental health. But before that, आपके journey पे वापस आते हैं. ठीक है. FBR. FBR. So Aisha, I was there. I did my CSS back in 2002. फिर मैंने 12 years वहाँ पे काम किया. And this thing started out of nowhere actually. मेरा अपने health issues बहुत सारे हो गए थे. I had 2 babies in 2 years and I was like, my insulin levels were wrong, all my cholesterol was bad. I was like, मुझे insulin लगानी पड़ती थी. मुझे sugar levels were 300 plus and my doctors were like so crazy कि क्या करना है. So I was like 105 kgs और मेरा सारी ज़िंदगी I was like a sports person and that kind of a person. 105 kg. I used to be 55-60. वो जो एक इंसान होता है ना जो हमेशा से एक healthy weight पे होता है. And so being that, and my first son, my eldest son was born in 2003. तो उस वक्त वापस weight आ जाता है जैसे normal होता है, kept working stuff, normal चीज़ चल रही. But when my second one was, I conceived my second one, उसके बाद third pregnancy 2 years में जब हुई ना मेरी, तो my body just gave up. And then I decided after having my third child, I decided कि बस अब ना मुझे break चाहिए from work and I need to work on my health. तो बस फिर मैंने FBR को बोला कि प्लीज़ मुझे रिज़ाइन करना है. I wanted to change everything. And they said, no, we'll give you a leave for 5 years, जैसे गवर्नमेंट में होता है. So they gave me the leave thankfully and I just kept to myself. I stayed home, looked after myself, lost all my weight. Weight issue नहीं था, मुझे मेरे medical issues थे. वो जब आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हुआ. Diabetes, blood pressure, it was really high all the time. And plus even my, joints and everything, I could feel like I felt like a 60-year-old. And at that time I was like 40. और ये तब की बात बता, 38 थी मेरी एज, ठीक है. एंड आई फेल्ट लाइक 60. तो वही था कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो हर वक्त एक्टिव होता है, इतनी चीज़ें करता है, वो ज़्यादा फील करता है कि ये क्या हो रहा है. So anyways, then I started reading up on how to, eat properly and all. Did you take any courses? I did. So यही मैं बता रही थी कि started reading up on it और वो करते करते लिंक एक से दूसरा बनता गया और मैंने कोई कोर्स कर लिया, मैंने फिर एक सर्टिफिकेशन कर ली. फिर मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है. 6 months के बाद जो मेरा सारा कुछ ठीक होने लग गया, बैलेंस, and my mental balance also came back. Then I did the whole degree from US. तो फिर मैंने कहा dietetics, nutrition, this is everything. We don't need टैक्सेशन अदर पीपल कैन डू. ये वाला मेरा काम है, मैं करती हूँ. एक कॉलिंग होती है, एक आपको फील होता है कि दिस इज समथिंग दैट यू वर बोर्न फॉर, राइट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस कंपनी और फिर 2012 में हमने ये शुरू किया. इट्स बीन 12 years now. और मैंने सबसे पहले कब आपसे मील प्लान्स ऑर्डर करने शुरू किए? I think it was 2018. No. 16 Before maybe. that, 16. हाँ, 16 because I was in Canada at the time. Yeah. You were in Canada और मेरी फिल्म रहबरा की शूट शुरू हो रही थी और मैं बड़ा ऑनेस्टली बताती हूँ कि उनके पास बजट नहीं था, स्पेशली खाने का तो था ही नहीं. तो वो शूट पे वो दिन का एक वक्त का खाना स्पाइसी या कोई बिरयानी या रोल आ जाता था विच पीपल लव, बट मुझे सूट नहीं करती थी स्पाइस. एंड आई वॉज ऑन अ हेल्थ जर्नी ऑल्सो. सो मैंने आई वॉज सो ग्रेटफुल
when I started having food by you, meals by you, और मेरा एक डब्बा, I'm famous for it. Yeah. कि मेरा खाने का डब्बा हर वक्त मेरे साथ होता है. But अभी हमें जाना है एक break पे. We're gonna come right back. Don't go anywhere. This is Speakeasy with Aisha Umar. Welcome back to Speakeasy. I'm Aisha Umar and you are watching me on 365 News. आज मैं बात कर रही हूँ सादिया से, who is the founder, CEO, partner, owner of Diet by Design, जो एक meal planning company है, but सिर्फ वो नहीं है, बहुत कुछ बनाते हैं, supplements बनाते हैं, basically health and nutrition and well-being. Am I correct? Yes. Yeah. You also opened a cafe, Sadia. Yes. How's that doing? So it was again one of those ideas where people kept telling me कि इतने मजे का खाना है तो कहीं और भी मिलना चाहिए. Like जैसे बिके तो सही. हाँ, एकदम से कहीं जा रहे हैं तो ऑर्डर कर लें कहीं, because we used to just deliver the meals like previous orders के साथ and subscriptions and all. So we it was like last year March we opened up in Packages Mall and it's called Indulgence by Diet by Design, and I remember that you came for the opening and then we had a lot of mileage. You and your mom both. अम्मी और मैं दोनों अम्मी और आप दोनों आए थे. We loved it and it's doing well because वही बात है कि people I think they were looking for some place which sold healthy food, और हम भी कहीं निकलते हैं तो we're always like कहाँ से मिलेगा. तो खैर it's doing really well and now we're opening up another inshallah bake shop on MM Alam. अच्छा सादिया, लोगों को ये लगता है कि अगर आप हेल्थी खाना खा रहे हैं या डाइट फूड खा रहे हैं तो उसका जायका बहुत बुरा होगा. आप तो बहुत कोई सैक्रिफाइस करके अपने आप को डिप्राइव करके वो खा रहे होंगे और दे फील बैड फॉर पीपल जो हेल्थी खाना खा रहे होते हैं. एंड मुझे तो हमेशा से जब से मैं अपने हेल्थ जर्नी पे शुरू हुई, थिंक अबाउट 10-12 years ago, यही लोग सार्कास्टिकली कहते थे या असल में भी कहते थे कि लिव अ लिटिल यार, जियो, मज़ा कब करोगी और बस कर दो और कुछ खा लो. सो पहले तो मैं जस्टिफाई करती थी कि अब मैं कहती हूँ कि नहीं यार मैं ठीक हूँ ऐसे. हाँ मैं फास्ट करती हूँ, बिल्कुल मैं कुछ नहीं खाती, बिकॉज लोगों को लगता है मैं कुछ नहीं खाती. हाँ मैं कुछ नहीं खाती, मैं स्टार्व करती हूँ, जबकि मैं स्टार्व नहीं करती. इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ योर फूड, इट इज़ द क्वालिटी. एब्सोल्युटली. तो ये परसेप्शन चेंज करने में कितना टाइम लगा आपको और कितना मुश्किल है ये चेंज करना? How did you do that? Aisha, it was so tough. Don't even talk about it. First 2 years, we only had hardly 20 or 30 clients. कोई आता ही नहीं था. हमने बड़ा अच्छा वाई ब्लॉग में खाना होगा. वो कहते हैं डाइट का लफ्ज़ है ना, डाइट बाय डिज़ाइन तो क्या है. हाँ, I have even seen people say कि शुगर फ्री है तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज शुगर फ्री है तो फिर इसमें कुछ और होगा, गलत हो, या फिर बहुत बुरा जायका होगा. तो दे लाइक शुगर फ्री है, वी आर नॉट हैविंग इट. इतना टाइम लगा, 2 years हम बिल्कुल स्ट्रगल करते रहे एंड वी लिटरली थॉट ऑफ क्लोजिंग डाउन द बिजनेस कि यार कोई आ ही नहीं रहा. यू नो, वाई ब्लॉक में बड़ा अच्छा मेन पे बना के ऊपर बड़ा सा बिलबोर्ड लगा के, और मैं वहाँ से ना ऊपर से यूँ देख रही होती थी नीचे, लाइक कोई नहीं आ रहा, सब लोग गुजर रहे हैं, व्हाई कांट दे सी दिस बोर्ड, यू नो, व्हाई आरंट दे कमिंग. और उस वक्त तो इंस्टाग्राम भी इतना, इंस्टाग्राम बस थोड़ा था, शुरू हुआ था, बट फेसबुक थोड़ा बहुत था, बट देयर वाज नो अदर कंपनी, सो वी वर द ओनली वन, सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू यू नो मेक दिस पीपल अवेयर ऑफ दिस कि हाँ अच्छा. फिर जो लोग आ जाते थे वो कहते थे अच्छा हम बर्गर्स भी खाएंगे, बिरयानी भी खाएंगे, हम पिज्ज़ा भी खाएंगे, लेकिन हम फिर कैसे वेट लूज करेंगे. सो दैट वाज अनदर परसेप्शन. वो ब्रेक करने में हमें 2 years लगे. 2 years के बाद हेल्थी बर्गर्स, हेल्थी बिरयानी और हेल्थी पिज़्ज़ा बनाने शुरू कर दिए. As long as it's oil free, it's low carb and it's low spice, तो वो सब कुछ ठीक होता है. And that's how we're working. अच्छा, शुरू में हम भी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि यार लोग नहीं आ रहे, क्या होगा, maybe it will not work, you know, बाहर तो होता है बट पाकिस्तान में लोगों को नहीं आदत है, अवेयरनेस नहीं है ना यहाँ पे. And they start with निहारी, they end with बिरयानी, like सारा दिन which is fine. मैं निहारी बिरयानी सब खाती हूँ जब मेरा मूड होता है. So when my friends see me, they like तुम तो सब कुछ खा रही हो, like यार देखो मैंने अपनी विंडोज, अपने मैक्रोस, अपनी चीज़ें काउंट की, मुझे पता है मैंने किस वक्त क्या खाना है. या और सबके साथ, it's not just me or you, whoever wants to lose weight or be healthy or especially lose internal fat,
एक सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के क्लिनिक के ऊपर व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोग्राम वी कॉल एवरीबडी फॉर एन असेसमेंट. इट्स नॉट जस्ट वेट लॉस. और फ़ोन पे कभी लोग कहते हैं हमारा प्रोग्राम शुरू कर दें, वी नेवर यू नो दैट. हम कहते थे आयशा अपनी असेसमेंट एक बार करा लें, ठीक है. सो बेसिकली वी नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी टू मेक इट बेटर एंड देन वी मॉनिटर इट एवरी वीक. सो वी हैव वीकली रीअसेसमेंट्स एंड एवरीथिंग. और फिर जो लोग बाहर हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, वी डू इट ओवर द फोन. सो फॉलो अप्स आर अ मस्ट. मॉनिटरिंग एंड तो फिर ये परसेप्शन कब चेंज हुई? 2 साल 2 साल लगे और फिर उसके बाद लोग आने शुरू हुए एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग इट, दे स्टार्टेड लूजिंग वेट, दे स्टार्टेड फीलिंग बेटर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक हुए. फिर जो बड़ी एज के लोग थे, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी डिजीज़. अब हमारे जो हैं क्लाइंट्स उसमें 20% आर रियली लाइक पीपल हु हैव मेडिकल सीरियस मेडिकल इश्यूज, CKD, किडनीज वाले, फिर लिवर सिरोसिस. वो बहुत बेहतर. दे आर ऑन द मील्स माशाल्लाह सिंस ईयर्स, लाइक 3-4 ईयर्स पुराने भी क्लाइंट्स वो खाते ही सिर्फ डाइट मेडिसिन. अच्छा, फिर कुछ हॉस्पिटल्स में भी हम देते हैं बिकॉज पीपल हु आर लाइक रियली कैन नॉट हैव एनीथिंग फ्रॉम हॉस्पिटल. फूड भी ठीक नहीं होता, घर वाला भी ठीक नहीं होता. ये तो मैं ओपनली कह रही हूँ. I have been in hospitals many times. Yeah. मेरी 3 सर्जरीज हुई हैं बड़ी तो मुझे पता है, मेरा तो घर से खाना आता था. Exactly. So हाँ, नहीं होता, which is quite sad, but anyways. हाँ. तो बस वो फिर मेडिकल इश्यूज वाले भी हैं and then there are people who are getting married, they only have 3 weeks or 1 month to lose this much amount. वो फिर हमारे programs different. लेकिन लोग आते हैं ना कि जब बस पतला होना है, हाँ. क्रैश डाइट करनी है, Yes. बस कुछ मुआवजा कर दें कि हम 1 महीने में स्किनी हो जाए. And we tell them, देखो ये आपका प्रोग्राम है, it will take 6 months, we do it gradually, slowly by eating everything balance में. carbs थोड़े कम भी कर लें लेकिन माइनस नहीं करने, तो but it takes a while but people get used to it, plus the supplements help also. Yeah, I remember कि एक टाइम था जब लोगों को लगता था कि मैं डाइट बाय डिज़ाइन जो कंपनी है उसमें एक पार्टनर हूँ, क्योंकि मैं इतनी स्टोरीज लगाती थी. आई वुड प्रमोट योर ब्रांड एंड योर कंपनी सो मच दिल से. सादिया ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये स्टोरी अभी लगाओ, ये लगाओ. तो हमारी एक फैमिली रिलेशनशिप शुरू. आयशा, people ask me literally, कितना पे करते हो आयशा को इसके लिए? I'm like, she does it herself. मैं बोलती भी नहीं. प्लीज. So आयशा, 1 रुपया आज तक मैंने इनसे नहीं लिया, 1 रुपया इन्होंने मुझसे नहीं लिया. That is so true. That is so true. And I think ये over the years जो relationship develop होती है, I mean it's like the most beautiful thing ever. And I know कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे renowned public figures आपके पास आए and not all of them endorse the brand too much. Yes, that's right. क्योंकि मुझसे तो हर बंदा आज तक I was like, सादिया मुझे कमीशन मिलनी चाहिए, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंट मैसेजेस आते थे. अच्छा, ये डाइट बाय डिज़ाइन क्या है, डू यू रेकमेंड इट, किस टाइप का खाना है, कहाँ से मिलेगा, क्या खाती हो, ये क्या है. सो आई सेंट अ लॉट ऑफ पीपल. Yes, we have had so many clients who looked at your stories, even people who are famous. तो आते थे, वो यही कहते थे कि आयशा ने हमें भेजा. I know कि वो ये भी कहते थे कि I'm not saying that, but आपने मुझे बताया था कि वो कहते थे कि आयशा की तरह लगना है. So true. बट मैं उनको वैसे इसका एक जवाब है मेरे पास कि आयशा की तरह लगने तो सारा कुछ चेंज करना होगा. सिर्फ ऐसा नहीं है, you have a hectic routine. I know how much you work on your body and your mind and everything. It's a combination. आपकी हेल्थ पूरी आपकी persona होता है. नहीं, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है. I want to thank all the people who helped me with this journey. लेकिन yes, discipline उसका क्रेडिट मैं लूँगी कि मैं अपनी डाइट के मामले में बहुत डिसिप्लिन्ड रहने की कोशिश करती हूँ. और उसमें मेहनत तो लगती है साथ में. बिल्कुल कि आपने ऑर्गेनाइज होना है, आपने अपनी ग्रोसरीज किस तरह करनी है, और जो लोग नहीं कर सकते ग्रोसरीज करें, फिर पकाएं, फिर उनके लिए डाइट बाय डिज़ाइन जैसी कंपनी. Exactly, yeah. So people come to us. That's how people come to us. कि बस अब सारा दिन groceries, meal plan, carb counting क्या करना है. And plus फिर जिनको PCOS वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, so वो supplements साथ लेते हैं. उसकी specific diet है, anti-inflammatory diet है. People have liver issues या gut issues. उनके लिए तो there's like a lot of different programs. Let's talk about inflammation. Yeah, okay. What is inflammation? यार देखो, हमारे गट में जब भी हम कुछ खाते हैं ना, it affects our, all of us have different flora balance. Basically हमारे गट में एक बायोम होता है, माइक्रोबायोम, which has small. हाँ, हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया होता है, गुड एंड बैड बैक्टीरिया. सो कंबाइन करके उसको कहते हैं माइक्रोबायोम. ठीक है, तो वो अच्छा या बुरा हो सकता है. अच्छा, अच्छे बैक्टीरिया कहाँ से होते हैं लोगों को पता है, जैसे दही में अच्छे बैक्टीरिया एक रेगुलर सी बात है. बट जब आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो ऐसी चीज़ें खाते हो ना, हेल्दी
चीज़ें, तो आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं और आपके बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करते जाते हैं। आप जितना ऑयल, शुगर, ये चीज़ें खाते हो, बैड बैक्टीरिया उसके ऊपर ही थ्राइव करते हैं। यानी बैड बैक्टीरिया की पार्टी चल रही होती है प्रोसेस्ड फूड पे, Yes. और गुड बैक्टीरिया की पार्टी चल रही होती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्थी फूड। Absolutely. So you explained it so much better than me. आयशा, मुझे लगता है जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना उनको ये तुम्हारा छोटा सा एक डायलॉग सुना दिया करो, है ना? This is so good. Like it's easier to understand. Yeah, imagine them dancing and having बस a वो great कर रहे time. हैं। So what do you want to do with your gut? Like अगर आपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है तो फिर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाएं। Plus there is another nervous system throughout the body. It's called the enteric nervous system. एंटेरिक, जैसे एक पैरासिम्पथेटिक होता है कि आपकी आउटर बॉडी, एक सिंपथेटिक होता है आपका ब्रेन और स्पाइन का सिस्टम होता है, एक तीसरा नर्वस सिस्टम होता है एंटेरिक। सो इट्स द गट एंड द ब्रेन कनेक्शन। तो हमारी Isn't that the central nervous system? सेंट्रल है ना ब्रेन और स्पाइन, ठीक है, एंड देन देयर इज This is the gut and brain. गट एंड ब्रेन Okay. कनेक्शन। इट्स कॉल्ड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। कहते ही उसे क्यों है, क्योंकि हम लोगों के ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो थिंकिंग सेल्स होते हैं हमारे, वो सिर्फ ब्रेन में ही होते हैं, राइट? दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, यू नो, दे हैव दोज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड ऑल। ब्रेन के जो सेल्स हैं ना, बेसिकली दे आर फाउंड इन द गट एज वेल। सो इट वाज एन अलार्मिंग डिस्कवरी लाइक 1980s में या कहीं पे Yeah. हुई थी कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ब्रेन वाले न्यूरॉन्स हैं ना वो गट में है। वो पेट में। That's why they call your gut Gut is your feeling. second brain also. Exactly. And gut feeling. Gut हाँ. feeling, like whatever you feel. सोच रहा है आपका पेट। Wow. वो एक्चुअली सोच रहा है, फिर आप उसको जो फीड कर रहे हो वो उसी तरह सोचता है। तो अगर आप बुरी चीज़ें खाते हो तो आपको डिप्रेशन, क्या है बुरी एंग्जाइटी, चीजें? एंगर, ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, Not oil. all kinds All thing. oils are not हाँ. bad. So all oils. no, not all oils. All oils are not bad, है ना, ये भी कहना चाहिए। लेकिन यार देखो, हम लोगों की जिस तरह एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हैं उसके ऊपर लिखा होता है हार्ट हेल्दी, ये हेल्दी, तो प्लीज कुछ मत देखें, कुछ मत सुने, अपनी रिसर्च करें। Seed oils are bad. सीड ऑयल्स, Vegetable oils are good. Like हाँ, olive. ऑलिव ऑयल इज गुड, इवन कोकोनट ऑयल इज सरसों। फाइन, सरसों का तेल ठीक है, सेसमी ऑयल ठीक है, ठीक है, इवन देसी घी भी अगर आप Oh, I खा रहे हैं love ना, देसी घी। हाँ, तो 1 स्पून अ डे वी टेल आवर क्लाइंट्स कि कोई डरने की बात नहीं मैं तो है। 2-3 मैंगोस भी खा spoon, लें। सादिया हाँ। देसी घी के खाती रही। आयशा, दिस इज फाइन, लाइक लुक एट यू। यही तो लोगों को बताना है कि देसी घी खाते हैं फिर भी हेल्दी कैसे रहते हैं, ना। सो आई मीन दो सीड ऑयल्स, प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स, जिसको हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं कि हेल्दी हैं, क्योंकि उनका नाम में हेल्दी चीज़ें आती हैं, सोय, कॉर्न, नाम में ये आते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होते। और घी भी सारे ऑयल्स की है। सब आपका oil। खाना पकता ही ऑयल में, गंदा तेल होगा तो वो खाना टॉक्सिक बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। अच्छा, देन व्हाट एल्स? ओके, सो प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि हमारे प्रोसेस्ड चिकन, सॉसेजेस, ये सब कुछ होता है। हर तरह का पैकेज्ड फूड जिसके अंदर आप देखें किसी चीज़ की शेल्फ लाइफ चिकन की अगर 2 साल है या 1 साल है, हाँ, प्रोसेस्ड फूड की होती है ना। सो प्रोसेस्ड फूड पे आप देखो 1 साल 2 साल की प्रोसेसिंग, मतलब उसमें कितना प्रिजर्वेटिव होगा। फ्रोजन प्रोसेस्ड फूड है। यस, एंड देन इवन सेमी फ्रोजन और चिल्ड, जैसे नॉर्मल चिकन वगैरह मिलता है, या सॉसेजेस स्पेशली, और नगेट्स, और मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, बट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो इफ़ यू वांट टू हैव देम, मेक देम एट होम। एक्चुअल चिकन से बना ले, नगेट्स वो सब बनते हैं। तो डाइट बाय डिज़ाइन पे यही तो करते हैं कि जो प्रोसेस चीज़ें उनकी जगह खुद से बनाते हैं। अच्छा, शुगर, रिफाइंड शुगर। शुगर इज अ The किलर, worst इट्स अ killer. किलर। Yeah. वो मुझे नहीं पता, वाइट पॉइजन बचपन में सुनते थे, लेकिन वो अब बड़े होके पता चला वाकई में है, बिकॉज कैंसर सेल्स दे थ्राइव ऑन Thrive शुगर। on white sugar. अगर मतलब मैं अब कैमरा पे बता देती हूँ, मेरी बिल्कुल पर्सनल बात है कि माई खाला शी वेंट थ्रू अ वेरी बैड कैंसर का, उनका वो हुआ डायग्नोसिस, एंड शी कॉन्टैक्टेड मी एंड शी सेड के सादिया भी है। तो मैंने कहा ठीक है, मेडिकली तो जो डॉक्टर्स कहते हैं वो आप सब मेडिसिन, केमोथेरेपी, एवरीथिंग, डू एवरीथिंग दैट यू नीड, बट मे बी आई कैन हेल्प यू समथिंग विद। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्या पता कैंसर का ट्रीटमेंट, आई एम नॉट लाइक इस तरह, बट वॉट आई न्यू वॉज कि गट के बैक्टीरिया को कैसे ठीक करना। तो मैंने उनको एक लिस्ट सी बना दी सिंपल सी कि आंटी आपने ना, खाला आपने खाने हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर ऐसे छोड़ दें जैसे आपका दुश्मन है, पॉइजन है वाकई में। शी डिड दैट, और 3-4 मंथ्स में वो रिवर्स भी होना शुरू हो गया। आप देखो, अल्लाह की चीज़ें होती हैं, एंड दिस इज ऑल बाय द वे मेड बाय अल्लाह। ठीक है, हमने तो नहीं, है ना, तो है, बट आप अपनी एफर्ट तो डालें ना।
Exactly. So sugar is like that bad. कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, inflammation again like you asked before, everything is caused by sugar. Sugar body से निकाल दें तो आपके 90% issues खत्म हो जाएंगे. 90 कहूँगी 100. 100%. Yes. Eyesight खराब होती है उससे, skin खराब होती है, acne निकलती है, hair loss, mental health. So it causes anxiety, depression, a lot of things, ADHD. अच्छा, लोगों को लगता है कि शुगर नहीं होगी तो जायका नहीं होगा, एंड पीपल थिंक कि जैसे मैं हूँ, आई डोंट कंज्यूम वाइट शुगर, कि तुम कोई मीठा नहीं खाती. मैं कहती हूँ मैं तो बहुत मीठा खाती हूँ. सादिया इज आई थिंक अ विटनेस टू दैट. मोस्टली मीठे लाहौर में सादिया ही भेजती हैं मुझे, और वो सारे शुगर ऑल्टरनेट से बने होते हैं. Yes. So we use stevia. Sugar alternates बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, बिकॉज उसमें एस्पार्टेम और डिफरेंट चीज़ें हैं. वो तो अब अवेयरनेस आ गई है लोगों को I'm कि so glad people are talking केमिकल्स about हैं it. जो एक्चुअली दे आर कैंसर कॉजिंग, दे आर वेरी डेंजरस. अच्छा, ब्रेक के इशारे हो रहे हैं. देयर इज सो मच टू स्पीक अबाउट ऑन Yeah. हेल्थ. आई विल कम टू योर पॉडकास्ट Sure, आल्सो, sure, एंड वी विल ओनली स्पीक अबाउट हेल्थ. Sure, we will, yeah. न्यूट्रिशन. टेक अ ब्रेक एंड वील बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पीक ईजी. आई एम आयशा उमर और आज मैं बात कर रही हूँ सादिया से फ्रॉम डाइट बाय डिज़ाइन. बिफोर द ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ food, your diet plays an integral part in every function in your body. जो आपके gut में हो रहा होता है, that's affecting your brain, your entire system. Fat जो होता है, like you said, एक तो होता है जो नज़र आ रहा है, ठीक है, बट कुछ जो internal fat होता है जो organs के ऊपर होता है. How dangerous is that? So basically we have two kinds of fat in the body, external which you can see on the outside. एक इंसान मोटा है या पतला है, Obese है, वो एक symptom वो है. नजर आ रहे हैं, वो देखने में जैसा भी है. बट कुछ लोगों के अंदर फैट होती है, बेशक वो बाहर से थिन नजर आते हैं. अच्छा. सो वी हैव अ लॉट ऑफ, हैव यू हर्ड ऑफ दीस पीपल लाइक सडन हार्ट अटैक, बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर था, बड़ा फिट था, Healthy हेल्दी थे, था, सब कुछ थे. हाँ, वो अंदर की फैट होती है जो कि उनके सब ऑर्गन्स के ऊपर एक्सेसिव होती है. या सो फिर एवरीबडी arteries के अंदर Exactly. layers आ जाती हैं. यू जस्ट सेड इट राइट. आर्टरीज में भी वही फैट जम जाती है, आपके गट की लाइनिंग में भी वो जम जाती है, लिवर के ऊपर. सो बेसिकली उसका आसान टेस्ट होता है कि अगर लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें, अगर आपके ESR, ALT, GGT सही नहीं आ रहे तो एक आप अल्ट्रासाउंड करा लो, उससे आपको फैटी लिवर पता चल जाता है. So if you have a fatty liver, it means that everything in your body is getting affected because liver makes cholesterol. फिर हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं, मतलब हम ना बहुत इंटरकनेक्टेड है सब कुछ. exactly triglycerides, everything. So basically it's the fat on the internal organs which disrupts everything. और उसी से फिर यही जो आप पहले भी बात करते हैं, इवन एंग्जाइटी, डिप्रेशन. अच्छा, कई लोग मैंने देखे हमारे क्लाइंट्स हैं आफ्टर लूजिंग 10 और 15 और 20 kgs. हमारे पास वैसे बहुत फनी बात है, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट 50+ kgs ओवर 2 और 3 years. तो उनकी तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है. आई थिंक 5-10 kgs के बाद भी इंसान बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. ऑफ कोर्स. मैंने जब आफ्टर माय आई थिंक 20s आई लॉस्ट अबाउट 5-6 kgs. हाँ. लोगों को लगा कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया. Exactly. Yeah, because inches also go down and you look different, you feel different. है ना, confidence level and everything. Energy level. Clarity आती है. Exactly. A lot of people think that mental health and physical health are not connected. Please tell us about this. What do you चलो think? सिंपल सा बताती हूँ, ठीक है, कि किसी भी मेंटल हेल्थ इशू को डील करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ टू ईट हेल्दी एंड टू एक्सरसाइज. मेडिकेशन एवरीथिंग वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. लिटरली जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो हमारे कहने पर एक दफ़ा ट्राई करें. And अपनी कुछ केसेस में तो पड़ेगी. बिल्कुल पड़ती है. अभी देखो, जिस तरह मिकाल की मैं एग्जांपल दोबारा देती हूँ, ही इज़ ऑन सम मेडिकेशंस फॉर डिफरेंट थिंग्स, बट एंग्जाइटी की उसकी ख़त्म हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइजिंग. सो आई रियलाइज कि 20 मिनट्स उसके लिए अच्छा नहीं है. 20 से वो थोड़ा सा कम एंग्शियस होता है, लेकिन 30 किया फिर 40 किया. सो वो 1 hour वर्कआउट कर ले जिस दिन, तो पूरा दिन उसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती. सो 24 hours में 1 hour, दैट्स ऑल ही नीड्स. तो डिफरेंटली एबल्ड लोग आपके पास आते हैं डाइट प्लान्स के लिए? लिटरली अभी आयशा, आई डोंट नो, ऐसे आप जो बता रहे थे कि कुछ चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो. आई थिंक बिकॉज ऑफ मिकाल, बिकॉज आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट पीपल हु हैव दीज इश्यूज, डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, ADHD है. एग्जैक्टली. So many. हाँ. तो वो अब हमारे पास बहुत क्लाइंट्स बाय चांस ऐसे आने लग गए. सो आई अंडरस्टैंड वेयर देयर कमिंग फ्रॉम. फिर उनकी मेडिसिन देख के और फिर मुझे समझ आ जाती है, कुछ नहीं भी बता रहे होते, बिकॉज वी डू हैव अ होल फॉर्म दे हैव टू फिल आउट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम.
तो मेडिसिन से पता चल जाता है कि इनको कुछ ऐसा इशू है, एंड देन वी डिस्कस इट विद देम. समटाइम्स इफ दे आर चिल्ड्रन लाइक टीनेजर्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, वी डिस्कस इट विद कर पा रहे हैं on their studies or in school or बिल्कुल. college. So changing their diet helps. Yes, it helps a It lot. reverses It things. helps so much. और फिर वर्कआउट, वो भी उनको बताना होता है कि बेटा you have to do this like therapy. How does your diet affect your mental health though? बस वही बात है कि it's totally dependent on your, you know, mental health is dependent on your diet and vice versa. It has to be, both of them have to be, you know. Definitely चीज़ें trigger होती हैं, but certain foods release serotonin in your body. जिस तरह chocolate, cacao, Yeah. Blueberries, Yes. you know, fatty fish. Fatty fish? Fatty releases fish, serotonin. yes, it Am I does, right? yeah. और serotonin is your comfort. Happy hormone, yes. Happy hormone तो oxytocin है ना? हाँ देखो सारे हैं, सेरोटोनिन भी है, ऑक्सीटोसिन भी है, डोपामीन, Dopamine is the reward hormone. एग्जैक्टली, एंड देन देयर एंडोर्फिन्स, वो एक्सरसाइज से और Exercise उससे से, मिलते हैं. बिल्कुल. सो ये 4 हार्मोन्स ज़रूरी हैं ब्रेन के फंक्शन के लिए, और जितने ज़्यादा उतने आप हैप्पी रहोगे. अच्छा, खवातीन की जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो भी कितने डाइट पे डिपेंड? बहुत ज़्यादा. एंड एवरी मंथ व्हेन दे आर इन देयर साइकिल दे नीड टू नो हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है. लिटरली नोबडी नोस. Do people come to you with infertility issues? Yes. And changing their diet से फर्क ओके, पड़ा है? सो डाइट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज वो बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है, बट वी हैव डेवलप 2 सप्लीमेंट्स फॉर फर्टिलिटी. अच्छा, उसको हम ना बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करते कि लोग कहेंगे कि अच्छा भाई अब आपने ये काम, यू नो हाउ पीपल आर. सो इफ समबडी टेल्स अस देमसेल्व्स, जिस तरह बात करते हुए क्लाइंट से पता चल जाता है कि जी क्या इशू है, Infertility बहुत है, डिप्रेशन हाँ. है जी, 5 years से वी वर ट्राइंग फॉर अ बेबी और ये, तो देन वी जस्ट टेक आउट दोज सप्लीमेंट्स एंड देयर फॉर मेन एंड वुमेन बोथ. But why can't you ask them? Sometimes we do because it's in the form. कि कोई आपके कितने बच्चे हैं, कब शादी हुई, you know all that. So through that we gauge it and then we ask them if they're ready to listen. क्योंकि ये थोड़ा sensitive topic होता है, especially for the men. तो हम कहते हैं husband को भी लाएं because that supplement works when both of them take it because you never know where the problem is, right? Yeah. तो अब हम उनको ना डाइट में डिज़ाइन बेबीज़ बोलते हैं. वी हैव हैड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, यू नो, जो अभी हमारे एक क्लाइंट थे देयर इन इस्लामाबाद, सो दे ब्रॉट देयर बेबी आफ्टर ही वाज बोर्न आफ्टर 5 years. तो वो सप्लीमेंट्स लिए, वो सारा कुछ किया एंड दे केम टू अस एंड दे ब्रॉट द बेबी शो इट एंड शोड हिम टू अस. तो वो होता है मतलब वो टीयरफुल मोमेंट्स जिसको आप कहते हो कि यार अल्लाह मियाँ की नेमतें और इतने हर्ब्स, जो इतनी चीज़ें, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ हर्ब्स एंड you know So food much, so that he has made. तो हमने बस ढूंढना है कि क्या कि चीज़. क्या अच्छा? आप बताएं कि is dairy bad for the human body and after what age? gluten क्या करता है? ये 2 चीज़ों का बताएं. क्योंकि शुगर की तो बात हो गई. मैं बहुत ज़रूरी बताना चाह रही हूँ एक्चुअली, बिकॉज मैं अपने सब क्लाइंट्स को ना कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि डेयरी इज़ बैड फॉर यू. उसमें क्या मैं कहती हूँ कि आप खुद ट्राई करें 1 month को डेयरी फ्री एंड सी हाउ इट अफेक्ट्स योर बॉडी. इट्स नॉट दैट डेयरी इज़ इन इटसेल्फ लाइक इनहेरेंटली बैड नहीं है, बट इट्स प्रोसेस्ड. हमारे यहाँ पर जैसे मिलती है पैकेज एंड ऑल हार्मोन्स, सो दे हैव ऑल दीज ग्रोथ हार्मोन्स इन देम विच कॉज एक्ने, एजिंग, PCOS. अच्छा, हमारे पास इतने क्लाइंट्स अब आ रहे हैं, teenagers, girls who have PCOS, and it is alarming. I have it. हाँ, exactly. You know, I've been trying to reverse it, but Yes. वही chicken, eggs, dairy, and dairy. These are the 3 things eggs. which can, because they have these immense, like बहुत ज़्यादा उसमें hormones हैं, and then they affect you. Like आप ये देखो, इसका simple होता है कि if you breed a chicken and it becomes big, अगर वो 1 महीने के process में होना है, वो 1 week में हो रहा है, मुझे exact days नहीं पता, but वो बहुत जल्दी 1/4 of the time में, so it's given the growth hormones. Even buffaloes and ये जो सारे दूध उसमें सब ये है. So I am against dairy. I am dairy free. तो आप जितना भी प्रोसेस कर लें, जितना भी टेट्रा पैक में दूध को डाल लें, अगर सोर्स दूध की इज नॉट हेल्थी, इट्स नॉट गुड फॉर यू. That's the exact. व्हाट इज ग्लूटेन? प्लीज एक्सप्लेन. ठीक है, ग्लूटेन एक ऐसी चीज़ है जो व्हीट के अंदर होता है. सो बेसिकली गंदम तो हमारी स्टेपल डाइट है. हाँ, तो हम लोग सब खाते हैं. अच्छा, हर एक को ग्लूटेन एलर्जी और वो कुछ नहीं होता. लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लूटेन खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. अच्छा, हमारे इन्फ्लेमेशन, एलर्जीज, इस तरह की चीज़ें ऑटो इम्यून आते जाते रहते हैं. सो ज़रूरी नहीं कि अगर आज आप एलर्जिक हैं ग्लूटेन को तो आप कल भी होंगे या अगले साल होंगे. सो हर साल में एक बार ना, अगर आपको लगे कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या मैं डाइट कर रही
रही हूँ, गैस हो रही है, मैं डाइट कर रही हूँ, वेट लूज नहीं हो रहा, या कोई भी लेथार्जिक फील कर रही हूँ बगैर वजह के, या एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, सांस बहुत चढ़ रहा है, डायबिटिक हो गए, प्री डायबिटिक, आपके टेस्ट ठीक नहीं आ रहे, बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो आप एक टेस्ट करा लें अपनी ग्लूटेन एलर्जी, फिश, एग्स, ग्लूटेन एंड डेयरी, इसका टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, साल में एक बार करा लें, हो सकता है आपकी बॉडी उस वक्त इन्फ्लेम हो गई हो। हमारी डाइट में व्हीट बिकेम अ स्टेपल बिकॉज इट वाज चीपर टू ग्रो इट, एंड वो बड़ी क्वांटिटी में ग्रो होता है, बिल्कुल, तो बस पैसा कमाना है, हाँ, वही सारी चीजें हैं उसमें, एग्जैक्टली, सो जो ज्यादा कम पैसों में ज्यादा चीज बन जाएगी, वही सब कुछ इसी के अराउंड जा रहा है, और सारी दुनिया में है आयशा, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, सीरियसली, जीएमओ फूड्स पूरी दुनिया में हैं, और जो बेचारे फार्मर्स हैं एवरीथिंग उनको बदनाम कर रहे हैं, Right. और उनको कह रहे हैं कि ये क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है यहाँ पे, एंड प्रोसेस फूड को प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर करके पैसे डाल के मार्केट absolutely कर रहे हैं, dangerous, and the entire world is talking about it, और इतनी तकलीफ होती है, but I'm so glad awareness बढ़ रही है, yeah, I'm so glad, and I hope कि मेरे शो के थ्रू भी कुछ थोड़ी सी अगर इंफॉर्मेशन लोगों को मिली है, आप जहाँ तक बैलेंस कर सकते हैं, जहाँ तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी डाइट में, कुछ चीज़ों को कट करें, मतलब शायद आप वो महंगी मटेरियल चीज़ें इतनी ना लें, वही पैसे आप खालिस ग़िज़ा को ख़रीदने में यूज़ कर लें, बिकॉज sadly natural foods are more expensive now. That is exactly what I was gonna say, कि भाई अब ये कि कोई आपने असल सब्जी या फ्रूट लेना है वो ज़्यादा महंगा हो गया, ज़्यादा महंगा, हाँ, आप एक टेंट कोई चीज़ ले लें वो everything is more expensive. So use your money wisely, prioritize, आपकी health आपकी priority होनी चाहिए, health is wealth. Thank you so much, Sadia. Thank you so much for having me on. And good luck with the rest of this. Thank you so much. May you rise, may you shine, and I hope कि मैं बस आपका खाना खाती रहूँ जब भी मैं लाहौर आऊँ, और जितने ज़्यादा लोग बेनिफिट कर सकते हैं मैं तो पूरी कोशिश करूँगी, that I can. You're doing your part, don't worry. Thank you. You're doing more than your part. Thank you. Thank you so much. Thank you for joining me, everyone. I'll see you next time with yet another expert in their field. Khuda Hafiz. You are watching Speakeasy. I'm Aisha Umar.